Hello everyone, a warm welcome to all of you. So I am Dr. Pradeep Adaka. I am the faculty of Geology at Evolution IAS, and today in this particular video we are going to discuss a very important topic from stratigraphy from paper 1 chapter 5, that is principles of stratigraphy. So it is a very important topic. It has been asked previously in the examination, right? So we'll be discussing the principles briefly, and before we move on to the principles, let us first discuss what is stratigraphy. So first we will see the definition of stratigraphy and try to understand what is stratigraphy, and then we'll move on to the principles. So पहले stratigraphy का definition देख लेते हैं, right? So stratigraphy is a branch of geology that is concerned with the study of the layers of rocks on the Earth's crust. Okay, that is the simplest definition of stratigraphy. Stratigraphy is a branch of geology concerned with the study of rock layers and the sequence, the arrangement of these rock layers on the Earth's crust. That is stratigraphy. So it is primarily used to study the sedimentary and layered volcanic rocks. All right. So again, following the definition, so stratigraphy is the study of layers of rocks and soil. Again, अगर ये sedimentary deposits हैं, so a volcanic rock layer may be followed by deposition of sedimentary layer, right? So stratigraphy is study of layers of rocks and soil that make up the Earth's crust. So as we have seen in the previous slide. So it is important because stratigraphy as a field क्यों important है? Why do we need to study the rock layers? इसका importance क्या है? Scope क्या है? Right? So it is important because it helps us to understand the Earth's history and how the planet has changed over time. So ये पेलियो क्लाइमेट को डिड्यूस करने में हेल्प करता है कि पहले कैसा क्लाइमेट था इन द पास्ट हिस्ट्री, राइट? हाउ द सरफेस ऑफ अर्थ हैज चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ बाय स्टडीइंग द फॉसिल्स प्रेजेंट इन द रॉक लेयर्स. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. सो stratigraphy helps us to understand Earth's history and how the planet has changed over a period of time. So by studying the layers of rocks and soil, geologists can learn about the past climate, paleoclimate के बारे में जान सकते हैं, geological events that has happened in the past, okay, and the evolution of life on the earth by studying the fossils present in these rock layers, how the life has evolved in the geological time. We can deduce all of these by studying the rock layers. Now stratigraphy is the scientific discipline. So ये सब एक तरह से stratigraphy के definitions हैं. We are trying to explain what is stratigraphy and what is its importance. क्यों जरूरी है rock layers को study करना. So stratigraphy is the scientific discipline in the geology where the progression of rock layers are studied. Progression of rock layers are studied to shed light on the Earth's history. So we study the rock layers to understand what has happened in the past. So stratigraphy can tell us the relative age of things. It can help us to understand progression of events in complex areas. What do you mean by that? So ऐसे areas जहाँ पर tectonically which are active, टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज है या जहां पर बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, तो वहां पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तुम इजीली बता सकते हो. कौन सा इवेंट पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ. यू कैन इजीली टेल विच इवेंट हैज अकर्ड फर्स्ट एंड विच हैज अकर्ड लेटर इन ए कॉम्प्लेक्स एरिया. सो कॉम्प्लेक्स एरिया से मतलब है जहां पर द एरियाज विच आर टेक्टोनिकली वेरी एक्टिव और द एरियाज where you have several geomorphological features. Okay. Now, again, starting with the simple definition, stratigraphy is the study of layers in the Earth's crust. So, by studying the rock layers in the Earth's crust,
These rock layers can reveal the history of the earth by showing how tectonic plates have moved or interacted. The history of life, life कैसे इवॉल्व हुआ अर्थ पे, by studying the fossils present in these rock layers. The fossils are preserved in these rock layers. Sedimentary rocks के अंदर जो preserved हैं उनको स्टडी करके लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ है ये बता सकते हो आप, ठीक है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तुम एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स कर सकते हो. यू कैन एक्सप्लोर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स बाय स्टडीइंग द रॉक लेयर्स. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटिग्राफी. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, अब हम लोग मेन टॉपिक में चलते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफी. वन बाय वन वी विल लुक इनटू द प्रिंसिपल्स. फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म. तो ये जियोमॉर्फोलॉजिकल का भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. इन जियोमॉर्फोलॉजी ऑल्सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज, वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म. नाउ दिस वाज गिवन बाय जेम्स हटन. ये एक स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट था, एग्रीकल्चरिस्ट भी था, केमिस्ट भी था, फिजिस्ट भी था. तो उस टाइम के जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट लोग थे वो मल्टी टैलेंटेड थे. अभी तो फील्ड्स बहुत स्पेसिफिक हो गए. अर्लियर दे यूज्ड टू वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स. सो जेम्स हटन वाज वन ऑफ दोज पीपल, राइट. सो ही एग्जामिन्ड द रॉक्स इन द स्कॉटलैंड एंड नोटेड दैट फीचर्स लाइक मड क्रैक्स, रिपल मार्क्स, ग्रेडेड बेडिंग, ये सब प्रिजर्व्ड हैं रॉक लेयर्स में. दीज आर ऑल preserved in the rock layers, marks which are preserved. So ये सब जो हैं, right, cracks, mud cracks, ripple marks, grade beddings, etc., were the same features that could be seen forming in the modern environments. So ये जो तुम्हारे preserved है rock layers के अंदर जो marks है, तुम्हारे ripple marks हैं या फिर mud cracks हैं, which have been preserved in the rock layers, ये तो अभी भी form हो रहे हैं. So the things which are happening today on the surface of the earth must have happened previously also in the geological past. So he concluded that processes that are currently operating on the earth must have happened in the past also. क्योंकि ये mud cracks, ripple marks अभी भी तुमको दिखते हैं. और जब उसने देखा ये प्रिजर्व्ड वाले थे जो बहुत पहले जो फॉर्म हुए थे, एंड दे हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द रॉक लेयर्स एज ए फॉसिल, फॉसिल की तरह वो प्रिजर्व हो गए हैं. मार्क्स, रिपल मार्क्स, राइट, ग्रेड बेड, ये सब जो प्रिजर्व हुए हैं बहुत पहले के, ये तो अभी भी फॉर्म हो रहे हैं. सो द थिंग्स विच आर हैपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट प्रेजेंट, दे मस्ट हैव हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो, राइट. सो ही कंक्लूडेड दैट प्रोसेसेस दैट आर करेंटली ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ मस्ट be the same processes that operated in the past. So this principle is often stated as present is the key to the past. जो अभी हो रहा है अर्थ सरफेस पे, ये पहले भी हुआ था. तो जो भी तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो नेचुरल लॉस हैं, दे आर द सेम, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द पास्ट. पहले से अभी तक सेम लॉस ऑपरेट कर रहे हैं. सो प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट. So a more modern way of stating the same principle is that the laws of nature, चाहे वो फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो, they have operated in the same way since the beginning of the time. For example, जो weathering process है, rocks का जो weathering process है, पहले भी होता हुआ है, अभी भी हो रहा है, right? Soil erosion जो है, अभी भी हो रहा है, पहले भी हुआ था. So all the natural laws, right, that have been operating today, they have been operating from back in the geological time. जो पहले हो रहा था अभी भी हो रहा है, right? So a more modern way of stating the same principle is that the laws of nature, be it the laws of physics, be it the law of chemistry, they have been operated in the same way since the beginning of time. And thus, if we understand the physical and chemical principles by which nature operates, we can assume that the nature operated in the same way in the past, right? So, जो भी physical processes अभी हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, ये पहले भी हुए हैं. Okay, the present is the key to the past. So, this is the principle of uniformitarianism.
जेम्स हटन ने दिया था, पहला प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। ओके, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी, इट इज वेरी सिंपल, राइट। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो ओल्डर रॉक लेयर्स हैं वो सबसे नीचे होते हैं, और जो नेक्स्ट यंगर रॉक लेयर है ये नीचे वाले लेयर के ऊपर होगा। सो इफ यू हैव फ्यू लेयर्स, इफ यू सी, अगर तुम्हारे पास ये रॉक लेयर्स हैं अर्थ क्रस्ट पे, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, जो बॉटम मोस्ट लेयर होगा ये ओल्डेस्ट लेयर है और ये यंगेस्ट है, जो टॉप मोस्ट लेयर है वो यंगेस्ट है, ठीक है। सो द ओल्डेस्ट लेयर विल बी एट द बॉटम, जो उसके ऊपर है वो ओल्डेस्ट लेयर से थोड़ा यंग होगा, जो इसके ऊपर है वो यंगेस्ट होगा। सो बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट विल अकर depositing older layers first followed by successive younger layers. So oldest layer will be at the bottom. So if there are multiple layers of rocks, सबसे older layer जो है सबसे नीचे होगा। So thus in a sequence of layers that have not been overturned by a later deformational event, the oldest layer will be on the top, on the bottom, oldest layer will be on the bottom and the youngest layer will be on the top. अच्छा, ये पहले वाला सेंटेंस क्या बोलता है? In a sequence of layers that have not been overturned by later deformational event, इसका मतलब क्या है? So ये एक और प्रिंसिपल से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टैलिटी। सो जितने भी लेयर्स, रॉक लेयर्स हैं, ये ओरिजिनली हॉरिजॉन्टल होते हैं। अगर कोई डिफॉर्मेशनल इवेंट हुआ है, जैसे फोल्ड हो गया, फॉल्ट्स हो गया, सो इफ द रॉक लेयर्स आर ओवरटर्न, तो सीक्वेंस तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अगर कोई डिफॉर्मेशनल इवेंट नहीं हुआ है, the original rock layers which are horizontal, if you see the bottommost layer, it will be the oldest layer and जो topmost layer होगा वो youngest होगा, ठीक है। So in a rock layer where deformational event has not taken place, the layers are originally horizontal. The oldest layer will be at the bottom, the youngest layer will be at the top. अगर डिफॉर्मेशनल इवेंट हुआ, यानी फोल्ड हो गया, फॉल्ट हो गया, लेयर्स ओवरटर्न हो गए, सो सपोज ये ओल्डेस्ट वाला लेयर है, ये यंगेस्ट लेयर है। अगर फॉल्ट हो गया, फोल्ड हो गया और ये ओवरटर्न हो गया ऐसे, तो ओल्डेस्ट लेयर ऊपर हो जाएगा और यंगेस्ट लेयर नीचे हो जाएगा। सो अनलेस ए डिफॉर्मेशनल इवेंट हैज टेकन प्लेस, राइट। नॉर्मली अगर कोई डिफॉर्मेशन इवेंट नहीं हुआ है, फोल्डिंग या फॉल्टिंग नहीं हुआ है, तो तुम्हारा ओल्डेस्ट लेयर नीचे होगा और यंगेस्ट लेयर सबसे ऊपर होगा। सो दिस इज द सेम प्रिंसिपल यूज्ड टू डिटरमाइन रिलेटिव एज ऑफ द ट्रैश पिट्स। नाउ अर्थ के सरफेस पे जो हम लोग नेचुरल ट्रैश पिट्स की बात कर रहे हैं, ट्रैश पिट माने कचरा डालने वाला प्लेस है ना, ट्रैश पिट, a pit where you put the trash. So अर्थ के ऊपर ट्रैश पिट क्या है? जो भी तुम्हारे सेडिमेंट्स आ रहे हैं, जो भी रिवर्स, जो भी तुम्हारे ग्लेशियर्स, पत्थर वत्थर जो भी सेडिमेंट्स को लेके आ रहे हैं, जो सेडिमेंट्री बेसिन है, द डिप्रेस्ड एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस, सेडिमेंट्री बेसिन्स आर द नेचुरल ट्रैश पिट्स, राइट। So this is the same principle used to determine the relative age in the trash pits. So in fact sedimentary rocks are in the same sense, in a sense, trash from the earth surface deposited in the basin. So sedimentary rocks जो हैं वो trash हैं, वो जाके basin is the pit. Sedimentary rocks जो sedimentary sediments आ रहे हैं वो तुम्हारा trash है. So they are deposited and sedimentary rocks are formed. Okay. So principle of superposition क्या बोलता है कि जो oldest layers हैं वो तुम्हारे bottom में होंगे और जो youngest layer हैं वो तुम्हारे top में होंगे, unless अगर कोई डिफॉर्मेशनल इवेंट हुआ है तो ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है। नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल रॉक्स हैं, वेयर नो डिफॉर्मेशनल एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस, द ओल्डेस्ट रॉक्स विल बी एट द बॉटम, द यंगेस्ट रॉक्स विल बी एट द टॉप। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टैलिटी बताया था मैंने, राइट, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेडिमेंट्री स्ट्रेटा आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स that are horizontal or nearly horizontal or parallel to the earth surface. So जो भी layers form होते हैं, sedimentary layers, they will be horizontal to the earth surface. So sediment deposited on the steep slopes. So अगर suppose कोई hill है छोटा सा,
ऐसा कोई हिल है, यहाँ पर तुम्हारा कोई वेदरिंग हुआ है, रॉक का जो सेडिमेंट्स है वो ब्रेक हुए हैं, तो ऐसी जगह पे तुम्हारा ना डिपोजिशन नहीं होता है, बिकॉज अगर तुम्हारा स्लोप पे कोई सेडिमेंट्स हैं, दे विल बी ब्रॉट डाउन आइदर बाय वाटर, रन ऑफ वाटर, बारिश हुआ है तो वो ले आएंगे, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स विल ब्रिंग देम डाउन। यहां पर तुम्हारा रॉक फॉर्मेशन नहीं होता है स्लोप्स पे, यू रिक्वायर आइदर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन और ए डिप्रेस्ड एरिया फॉर द सेडिमेंट्स टू डिपॉजिट। कोई हॉरिजॉन्टल एरिया चाहिए या फिर एक बेसिन चाहिए, सेडिमेंट्री बेसिन, जहां पर तुम्हारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे। ओके, ऐसे स्लोप में तुम्हारा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। सो थस रॉक्स दैट वी नाउ सी इंक्लाइंड और फोल्डेड, सो नॉर्मली तुम्हारे जो रॉक लेयर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल होंगे। अगर तुमको इंक्लाइंड रॉक लेयर्स मिलते हैं, इस तरह से रॉक लेयर अगर है, इसका मतलब है भाई यहां पर कोई डिफॉर्मेशनल इवेंट हुआ है। नॉर्मली जो तुम्हारे रॉक लेयर्स हैं दे आर हॉरिजॉन्टल। अगर कोई डिफॉर्मेशनल इवेंट हुआ है, फोल्डिंग या फॉल्टिंग हुआ है स्ट्रेस की वजह से, टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से, देन यू कैन सी इंक्लिनेशन या ओवरटर्निंग ऑफ द rock layers. Normally they are horizontal. So thus the rocks that we now see which are inclined or folded, they have been disturbed since their original deposition. Originally they are horizontal. अगर हमको कोई, ये देखो, ये ओरिजिनल हॉरिजॉन्टैलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टैलिटी। लेटर ऑन अगर कोई डिफॉर्मेशनल इवेंट हुआ है तो इनका जो है एंगल चेंज हो जाएगा, दे विल नॉट बी हॉरिजॉन्टल, दे विल बी इंक्लाइंड। सो अगर तुमको इस तरह से रॉक लेयर दिखते हैं, इसका मतलब है फोल्डिंग या फॉल्टिंग हुआ है, कोई डिफॉर्मेशनल इवेंट हुआ है वहां पर। ओरिजिनली दे शुड बी हॉरिजॉन्टल। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टैलिटी। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल कंटिन्यूटी। सो इफ द लेयर्स आर डिपॉजिटेड हॉरिजॉन्टली ओवर द सी फ्लोर and they would be expected to be laterally continuous over some distance. Thus, if the strata, अगर suppose कोई और rock layer deposit हुआ है, कोई suppose limestone वाला rock layer deposit हुआ है ocean में, if it is exposed, वो बाहर आ गया बाद में rock layer limestone का, and later on due to erosional activity it is cut through, बीच में से एक कैनियन फॉर्म हो गया। सो ये सारे लेयर्स हैं ए बी सी डी, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स, और बीच में एक रिवर ने आकर एक कैनियन बना दिया। सो रिवर हैज एरोडेड द रॉक लेयर्स एंड ए कैनियन इज फॉर्म। यू कैन सी द सेम रॉक लेयर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कैनियन। सो देर इज कंटिन्यूटी. So if the strata are later uplifted and then cut by a canyon, we know that the same strata would be expected to occur on both the sides of the canyon. क्योंकि ये जो है तुम्हारा rock layer है, ये continuous है, it extends over a large area. So अगर बीच में से तुम्हारा एक canyon cut भी हो गया due to the erosional activity, दोनों तरफ तुमको same layers मिलेंगे. So this is principle of original continuity. So अगर तुम्हारा deposition हो रहा है तो it happens over a large area. Now, next principle is principle of cross-cutting relationships. Okay, principle of cross-cutting relations. अब यहाँ पे देखो, this is very simple principle. So you can see different rock layers. सबसे नीचे वाला लेयर जो है ये mudstone है, this is mudstone. इसके ऊपर एक लेयर है that is sandstone. उसके ऊपर एक लेयर है that is shale, and this is the surface. ऊपर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। सो वी नो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सबसे नीचे वाला लेयर जो है ओल्डेस्ट होगा, ये मिडिल लेयर है, ये टॉप मोस्ट, ये यंगेस्ट है। ओके, नाउ थ्रू दीज लेयर्स देयर इज ए प्लूटोनिक लैंडफॉर्म। सो डाइक्स एंड सिल्स, तुमने देखा होगा वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। सो ये डाइक है। सो ए डाइक हैज कट थ्रू दीज rock layers. So it has cut through mudstone, sandstone and shale. So cut करके ये
इन तीनों लेयर्स को कट कर रहा है ये डाइक। इसका मतलब क्या है, ये तीनों लेयर्स पहले से ही थे, उसके बाद ये डाइक ने इनको कट किया है। दैट मीन्स द बसाल्ट डाइक इज द यंगेस्ट, यानी मडस्टोन, सैंडस्टोन, शेल ये पहले से थे, उसके बाद तुम्हारा बसाल्ट का डाइक इनको कट किया है। इट हैज क्रॉस कट दीज लेयर्स, सो दिस इज द यंगेस्ट। ठीक है, सो मडस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल दे आर ओल्डर देन द डाइक। ठीक है, सो यंगर फीचर्स ट्रंकेट ओल्डर फीचर्स, सो फॉल्ट्स, dikes, erosion etc must be younger than the material that is faulted, intruded or eroded. So ये जो तुम्हारा इंट्रूजन हुआ है डाइक का, बसाल्ट डाइक का, ये यंगेस्ट है कंपेयर टू दीज लेयर्स, क्योंकि ये पहले से थे, इनको कट करके ये इंट्रूड हुआ है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मडस्टोन, sandstone and shale are cut by the basalt dike. So we know that mudstone, sandstone and shale had to be present before the intrusion of the basalt dike. यानी basalt dike youngest है compared to these three layers. In the same way, rhyolite dike है, ये थोड़ा सा acidic. This is acidic material. basalt जो है ये तुम्हारा basic rock है. तो rhyolite जो है, so rhyolite is cutting through mudstone and sandstone. तो इतना तो बोल सकते हैं कि mudstone and sandstone से तो younger है ये rhyolite वाला डाइक जो है. So this is younger than mudstone and sandstone. shale का पता नहीं, हो सकता है shale बाद में डिपॉजिट हुआ हो, but we can confidently say that rhyolite dike is younger than mudstone and sandstone. So rhyolite dike cuts only through mudstone and sandstone but not through shale. Thus we can deduce that mudstone and sandstone are older than rhyolite dike. But since the rhyolite dike does not cut across the shale, we know that shale is younger than rhyolite dike. तो इतना तो कंक्लूड कर सकते हो. एक और एग्जांपल देखो, हमने अभी देखा था इंट्रूजन का. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉल्ट. So lower most layer is your limestone, उसके ऊपर वाला siltstone, then उसके ऊपर basalt है. तो oldest is the limestone and youngest is the basalt layer. So here you can see in the diagram the fault cuts the limestone and the sandstone. ये जो fault है, it cuts through limestone and sandstone but does not cut through the basalt. Thus we know that fault is younger than the limestone and shale but older than basalt. Basalt is younger than the fault. So this is principle of cross cutting relation. Okay, now next principle is principle of inclusion. This is the principle of inclusion. So here you can see in the example, lowermost layer is sandstone एंड ऊपर वाला जो लेयर है दैट इज रायोलाइट लावा फ्लो एंड मिडिल में जो है दैट इज बसाल्ट लावा फ्लो. ठीक है, सैंडस्टोन, अबव द सैंडस्टोन यू हैव बसाल्ट लावा फ्लो, इट हैज सॉलिडिफाइड. इसके ऊपर वाला जो नेक्स्ट है वो रायोलाइट लावा फ्लो है. 3 लेयर्स आर देयर. सो यू कैन सी सैंडस्टोन का जो तुम्हारा पीसेस हैं, द सैंडस्टोन रॉक पीसेस, दे आर इंक्लूडेड inside the basalt lava flow. So basalt का जो lava flow है, there are sandstone inclusions in the lava flow. इसका मतलब क्या है? Inclusions are older. लावा तो बाद में आया है. So लावा जो है वो कूल होगा. ये तुम्हारा basalt lava flow है वो कूल होगा, उसके बाद रॉक बनेगा. ये तो पहले से ही है ना, sandstone is already there. So these inclusions we can say they are older than the lava flow. So basalt is younger layer and these sandstone inclusions, these are older than the basalt lava flow. In the same way, इसके बाद ये cool down हो गया, इसके बाद में एक और तुम्हारा volcanic explosion हुआ and volcanic eruption से you have your rhyolitic lava flow.
जनरली रायोलाइटिक जो लावा फ्लो होता है, देयर इज ए एक्सप्लोजन, ओके, बिकॉज वो उसका जो क्रेटर है वहां पर सॉलिडिफाई हो जाता है प्रीवियस जो तुम्हारा मैग्मा था, एंड सेकेंड टाइम व्हेन इट एरप्ट्स विथ ए बैंग। सो यहाँ पे देखो रायोलाइटिक जो लावा फ्लो है उसके अंदर बसाल्ट के इंक्लूजन्स हैं, यानी बसाल्ट के जो फ्रैगमेंट्स हैं दे आर इंक्लूड इन द रायोलाइटिक लावा फ्लो। इसका मतलब बसाल्ट के इंक्लूजन्स ओल्डर हैं और रायोलाइटिक लावा फ्लो तुम्हारा यंगर है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। सो इफ वी फाइंड ए रॉक फ्रैगमेंट एनक्लोज्ड विद इन अनदर रॉक, वी से द फ्रैगमेंट इज एन इंक्लूजन। सो देखो यहां पर बसाल्ट के रॉक के अंदर तुमको सैंडस्टोन के इंक्लूजन्स मिल रहे हैं। So sandstone is inclusion inside the basalt here. Okay. So if the enclosing rock is an igneous rock, then inclusions are called as xenoliths. So igneous rock है ना? So lava के cooling down से बन रहा है igneous rock है, तो these are called as xenoliths. Xeno का मतलब है stranger. So basalt के rock के अंदर तुमको sandstone के inclusions मिल रहे हैं. Strange rock is found in the basalt. Foreign rock is found in the basalt. So in either case the inclusions had to be present before they could be included in the younger rock. तो inclusion पहले से होना चाहिए. So inclusion, अगर पहले ऊपर rock थे उसके ऊपर lava flow हुआ है तो inclusion should be, they should have been present before. तो inclusions are older than the lava flow. So in the example here, as the basalt flowed out on the surface and picked the inclusions of sandstone, so we know that sandstone is older than the basalt. Similarly, basalt के ऊपर क्या है, rhyolite का है. So basalt inclusions are present in the rhyolitic flow. तो इसका मतलब क्या, basalt पहले था, so basalt fragments have been picked up by rhyolitic flow. So rhyolite is younger than the basalt. So we can conclude that. So this principle is often useful for distinguishing between a lava flow and a sill. तो sills are plutonic landforms. एक पतला सा लेयर, तुम्हारे दो रॉक लेयर्स, पतला सा लावा का लेयर, पतला सा मैग्मा का जो लेयर है वो दो लेयर्स के बीच में फॉर्म होता है. सो इट इज ए हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म which is formed due to the cooling down of magma between two rock layers. So in this case, यहाँ का केस देखो. So in the case shown here, we know that basalt is a sill, क्योंकि basalt जो है, देखो basalt के अंदर rhyolitic के fragments भी हैं और ऊपर वाले sandstone के fragments भी हैं. तो इससे ये मालूम चलता है कि ये जो basalt का जो लेयर है ये एक सिल है. ये sandstone और rhyolitic lava, rhyolite जो रॉक है तुम्हारा, उन दोनों के बीच में आया है, क्योंकि बसाल्ट के अंदर दोनों के फ्रैगमेंट्स हैं, सैंडस्टोन के भी फ्रैगमेंट्स हैं और रायोलाइट के भी फ्रैगमेंट्स हैं. सो वी नो दैट बसाल्ट का जो लेयर है ये एक सिल है. दिस इज ए सिल. दिस हैज एंटर्ड बिटवीन द रायोलाइटिक एंड सैंडस्टोन. रायोलाइटिक लावा फ्लो, लावा एंड सैंडस्टोन के बीच में तुम्हारा बसाल्टिक सिल फॉर्म हुआ है, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द फ्रैगमेंट्स. दोनों के फ्रैगमेंट्स हैं इसमें. So ये last principle है, that is principle of chilled or baked margins. So what does it say? So when a hot magma intrudes into cold country rock, यहां पे देखो, so ये so तुम्हारा ये country rock है, यहां पे तुम्हारा hot magma enter हुआ है. हॉट मैग्मा एंटर्स इनटू कोल्ड कंट्री रॉक, ऐसे एंटर हुआ है. तो दिस इज कोल्ड कंट्री रॉक. इसके अंदर ये येलो वाला हॉट मैग्मा है. सो व्हाट हैपेंस, ये हॉट मैग्मा तुम्हारा कोल्ड जो सरफेस पे कंट्री रॉक्स हैं उसके ऊपर जब टच करता है, व्हाट हैपेंस, इट विल लूज हीट. जल्दी जल्दी ये ठंडा होने लगेगा. मार्जिन्स में इट विल कूल डाउन वेरी फास्ट बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड रॉक. तो मार्जिन्स में क्या होगा, जल्दी जल्दी ये सॉलिडिफाई होगा. इट विल स्टार्ट टू सॉलिडिफाई क्विकली अराउंड द मार्जिन्स. मार्जिन्स में जल्दी ये सॉलिडिफाई होने लगेगा क्योंकि मार्जिन्स में ये कोल्ड रॉक के साथ कांटेक्ट में है. इट विल लूज हीट वेरी क्विकली ड्यू टू कंडक्शन
एंड इट विल स्टार्ट टू सॉलिडिफाई, ठीक है। सो मैग्मा जो लिक्विड फॉर्म में था वो सॉलिडिफाई होने लगेगा जल्दी। सेंटर में अभी भी लिक्विड में है, सेंटर में अभी भी मोल्टन फॉर्म में है, एडजस में जल्दी जल्दी सॉलिडिफाई हो रहा है। सो इट इज क्विकली बिकमिंग कूलर एंड सॉलिडिफिकेशन इज हैपनिंग। जब ये सॉलिडिफाई हो रहा है जल्दी जल्दी, सो क्रिस्टल फॉर्मेशन, प्रॉपर मिनरल्स के क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज इट इज कूलिंग डाउन वेरी फास्ट, इट डज नॉट हैव टाइम फॉर टू फॉर्म लार्ज क्रिस्टल्स। तो जो एडजस्ट में देखोगे ना अगर तुम, सो ये जो तुम्हारा मैग्मा है, ये जब कूल डाउन हो रहा है जल्दी जल्दी, मार्जिन्स पे वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स विल बी फाउंड, बहुत ही छोटा छोटा क्रिस्टल्स फॉर्म होता है। वो तो माइक्रोस्कोप के बिना कभी कभी दिखेगा भी नहीं तुमको, अनलेस लेंस या माइक्रोस्कोप से देखो तुमको दिखता भी नहीं है। सो जल्दी सॉलिडिफाई होता है मार्जिन्स में। सेंटर में अभी भी गर्म है, द मैग्मा इज स्टिल मोल्टन इन द सेंटर। तो यहां पर कूलिंग जो हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। सो हियर इट विल हैव टाइम टू फॉर्म लार्ज क्रिस्टल्स। सो यू कैन सी टेक्सचर में डिफरेंस आ जाता है। यहां पे जो मैग्मा है अल्टीमेटली व्हेन इट सॉलिडिफाइज, टेक्सचर में डिफरेंस तुमको दिखेगा, क्योंकि सेंटर में तुमको बड़े क्रिस्टल्स दिखेंगे मिनरल्स में, मिनरल्स के, और एडजस्ट में ऑलमोस्ट एफिनिटिक, टेक्सचर विल बी एफिनिटिक। क्रिस्टल्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं, प्रॉपर्ली दिखेंगे भी नहीं तुमको। सो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड मार्जिन्स, प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड मार्जिन्स। So when a hot magma intrudes into cold country rock, magma along the margins of the intrusion will cool more rapidly than the interior. तो सेंटर वाला जो मैग्मा है it will cool slowly. तो क्रिस्टल फॉर्मेशन का टाइम मिलता है। जो मिनरल्स हैं as they cool down they will crystallize. मार्जिन्स में बहुत जल्दी कूल हो रहा है तो टाइम नहीं मिलता है क्रिस्टलाइज होने के लिए, तो वेरी स्मॉल एफिनिटिक टेक्सचर तुमको दिखेगा। सो रैपिड कूलिंग ऑफ मैग्मा रिजल्ट्स इन फाइन ग्रेन्ड रॉक की, फाइन ग्रेन रॉक और ग्लासी रॉक एट द मार्जिन्स, एंड सेंटर में तुमको बड़े क्रिस्टल्स मिलेंगे, फाइनेरिटिक टेक्सचर तुमको मिलेगा। अलोंग द मार्जिन्स तुमको ग्लासी और फाइन ग्रेन टेक्सचर मिलेगा। सो एंड इफ दिस अकर्स अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द इंट्रूजन, we will see the effects of rapid cooling along the margin. Since slower cooling will occur farther away from the margin, यानी सेंटर में कूलिंग धीरे धीरे होता है, वहां पे तुमको बड़े क्रिस्टल्स मिलेंगे मिनरल्स के। सो सेंटर में, वो मैग्मा का सेंटर में तुमको कोर्स ग्रेन टेक्सचर मिलेगा, वही तुमको मार्जिन्स में फाइन ग्रेन टेक्सचर मिलेगा, एफिनिटिक ऑलमोस्ट ग्लास लाइक। थस इफ वी सी चिल्ड मार्जिन्स वी नो दैट इंट्रूजन मस्ट बी यंगर। अगर तुम चिल्ड मार्जिन्स देखते हो, कहीं पे तुमको चिल्ड मार्जिन्स दिखता है, तो इसका मतलब है जो इंट्रूजन है ये यंग है, क्योंकि इसके मार्जिन्स चिल्ड हैं, यानी बहुत छोटा छोटा क्रिस्टल्स है, बहुत माइन्यूट टेक्सचर, ऑलमोस्ट बहुत ही फाइन ग्रेन है। अगर तुमको ये चिल्ड मार्जिन्स बोलता है, अगर तुमको ये दिखता है, इसका मतलब है जो इंट्रूजन है यंगर है, ये कंट्री रॉक है जो वो ओल्डर है। ओके, इफ वी सी चिल्ड मार्जिन्स वी नो दैट इंट्रूजन मस्ट बी यंगर देन द सराउंडिंग रॉक, बिकॉज सराउंडिंग रॉक had to have been there first to cause the cooling effect. ये cooling effect जिसकी वजह से ये fine grain texture हुआ है margins में, वो surrounding rock के cooling effect की वजह से हुआ है। Country rock because it was colder, hot magma उसके अंदर intrude हुआ है। So this intrusion is younger than the surrounding rock. We can conclude that. Now baked zones. So principle of chilled margins देख लिया, अभी baked zones देखो। इसका मतलब क्या है? So when a magma comes in contact with solid or cold rock, it may cause, soil or cold rock, it may cause the soil or the rock to heat up, resulting in a baked zone surrounding the rock near the contact with the magma. So जहां पर suppose ये तुम्हारा रॉक है, ये तुम्हारा कंट्री रॉक है, और यहां से तुम्हारा मैग्मा आ गया कांटेक्ट में, कंट्री रॉक के कांटेक्ट में। सो अगर तुम देखोगे, इफ यू सी, जहां जहां तुम्हारा मैग्मा कांटेक्ट में आया है कंट्री रॉक के, ये पूरा जोन जो है ये एक्सट्रीमली हीट अप हो जाएगा। ये पूरा जो जोन है दिस विल हीट अप,
एंड इट विल कॉज ए बेकिंग इफेक्ट. सो ये तुम्हारा है मैग्मा एंड दिस इज योर कंट्री रॉक. कंट्री रॉक का मतलब यही है कि जो भी पत्थर तुम्हारे सरफेस पे हैं, दोज आर कंट्री रॉक्स. आई मीन जो सरफेस, जो अपर मोस्ट लेयर्स हैं क्रस्ट के, दोज आर द कंट्री रॉक्स. सो मैग्मा जब कंट्री रॉक के कांटेक्ट में आता है तो कंट्री रॉक के साथ जहां पर कांटेक्ट में आया है वहां वाला रीजन जो जहां कांटेक्ट में आएगा वो पूरा गर्म हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग इट कॉजेस बेकिंग. यहां पर बहुत ही यू कैन से थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, बट नॉट वेरी एक्सट्रीम. बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं, बहुत ज्यादा मेटामॉर्फिज्म नहीं होगा, बट यू कैन से लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म हैपेंस. लो टू मीडियम ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, थर्मल मेटामॉर्फिज्म हैपेंस wherever मैग्मा टचेस द कंट्री रॉक. तो तुम्हारा जो लाइमस्टोन जो मार्बल में कन्वर्ट होता है ना, वो भी इस तरह के बेकिंग इफेक्ट की वजह से होता है. दैट ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस बेकिंग इफेक्ट. थर्मल मेटामॉर्फिज्म है जहां पर लाइमस्टोन विल बी कन्वर्टेड इनटू मार्बल. सो जहां भी कोई मैग्मा कंट्री रॉक के कांटेक्ट में आएगा, it will heat up the country rock, it will have a baking effect. So this is called as baked zones, principle of baked zones. So when a magma comes in contact with the soil or cold rock, it may cause the soil or rock to heat up, resulting in baked zone in the surrounding rock near the contacts with the igneous. Such margins indicate that igneous rock is younger than the soil or rock that was baked. So this is the principle of chilled margins and baked zones. So these are the principle of stratigraphy, the different principles of stratigraphy. तो ये stratigraphy का जो चैप्टर है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं. सो आई होप यहां से तुम अच्छा से एक नोट्स प्रिपेयर कर लोगे एंड जहां पे रिलेवेंट डायग्राम्स तुमको चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टलिटी वाला है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूटी, बेक्ड मार्जिन्स, चिल्ड जोन, जहां भी डायग्राम तुमको नेसेसरी है वहां पे तुमको डायग्राम के साथ तुमको आंसर लिखना पड़ेगा. ठीक है, यू कैन प्रिपेयर द नोट्स फ्रॉम द स्लाइड्स. आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर मेकिंग notes regarding this topic of principles of stratigraphy. Thank you very much.